Jai Gurudev, dear students. Children, welcome again in this EVS class. Children, we have already started and just going to complete this chapter number 2, and this chapter is work and play. So, under this chapter, I have taught you about the different occupations, and after the different work of people, we are going to study about the games what we play, different types of games. So under this, children, I have taught you about mainly two kinds of games. One was the indoor games and second was the outdoor games. In the last class, we have studied already about these two types of games. So with name you can understand what are the indoor games. So under indoor games, children, I have taught you that those games which we play inside our house or in any covered area are called as indoor games. So under this, examples are Ludo, Carom, chess, table tennis, snooker, bowling, cards and billiards, etc. And in the same way, I taught you about the outdoor games also. These games which we play outside in an open ground are called outdoor games. So under the outdoor games, you can give example of any those games like swimming, skating, kite flying and cricket, badminton, tennis, hockey and football, volleyball, kabaddi, etc. So children, these all games need any ground or a court to play. Okay, so these are called outdoor games, and with picture we have seen in the last class about these all the games. And after that, today we are going to start from this para that the schools also provide various sports equipments to their students for playing in school. So children, in schools also, when your games period is there, or when you are going to play any sport in the school, at that time also you may get different sports equipments. Sports equipments means those tools or those equipments with the help of that you can play any kind of game. For example, if you want to play cricket, then what you need? You need mainly bat and ball, cricket ball and cricket bat, and also wickets. Okay, so these all the things you can get from the school to play a particular game. So these kind of games we can play in the or sports we can play in the school also. So sports day is celebrated in schools to develop healthy competitive team spirit and cooperation in children. So children, you also know that in our school also after means alternate year we celebrate sports day. Okay, one day in our school we celebrate annual function, and second every alternative year we celebrate sports day.
So sports day is celebrated in the schools, and why we celebrate these sports day? One thing is that we should find out the talent among the students. Means if anyone is good in athletics, means racing, then we can find out the ability to run of various children. And second thing, we also know about the children, that how they can play different games and who's best in which game. So इस स्पोर्ट्स डे में हमको बेस्ट स्टूडेंट का भी पता चल जाता है, जो हमारे स्पोर्ट्स में किस गेम में वो बेस्ट खेल रहा है। और उसके साथ ही साथ में चिल्ड्रन, बच्चों में कॉम्पिटिटिव टीम स्पिरिट, I already told you in this chapter that what is competitive team spirit means this, इसको हम बोलते हैं कंपटीशन करने की भावना। तो ये कंपटीशन करने की भावना भी उनमें जागृत होती है। एंड कोऑपरेशन इन चिल्ड्रन, और मिलजुल के काम करने को क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन। सो व्हेन वी प्ले एनी गेम, वी फर्स्ट make a team for that. Okay, so when we work in a team, then we learn how to do work with cooperation. मतलब एक दूसरे की सहायता से हमें कैसे काम करना चाहिए, ये भी हम इन्हीं गेम्स के थ्रू सीखते हैं। मतलब बच्चे गेम्स के थ्रू दो चीज़ें मेन सीखते हैं। एक तो उनमें कंपटीशन की टीम में कंपटीशन की भावना जो होती है वो जागृत होती है, और सेकंड वो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से मिलजुल के काम करना सीख जाते हैं। ओके, सो आफ्टर दिस वी सी सम चिल्ड्रन cleaning utensils in some place. They also work in fields, trains, etc. बच्चों, आपने भी बहुत बार देखा होगा, कई बार हम कहीं जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं या इवन बहुत सी ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनसे बर्तन साफ करवाए जाते हैं। ओके, और वो वहाँ पे उसके लिए उनको थोड़े बहुत वो पैसे दे देते हैं लोग, और उनसे वो लेबर वर्क करवाया जा रहा है, काम करवाया जाता है थोड़े से पैसे के लिए। और ये वर्क आप इस टाइप का, डिफरेंट टाइप का जो वर्क है वो छोटे छोटे बच्चे करते हुए आप लोग डिफरेंट प्लेसेस पे और भी देख सकते हो। जैसे खेतों में भी छोटे बच्चों से काम लिया जाता है, क्योंकि वो उनको थोड़े पैसे में वो काम करके दे देते हैं और वो लोग उनसे काम करवाते हैं। फिर ट्रेन्स में भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे कुछ कुछ चीज़ें बेचते हुए आपको दिखते हैं। स्टेशन पे भी आप देख सकते हो, कोई पेपर बेच रहा है, कोई और छोटे मोटे काम करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो छोटे बच्चों से काम लेना है, ये इल्लीगल है, गैर कानूनी काम है। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड लेबर। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं बिलो 18, उनसे काम करवाना हमारी कंट्री में इल्लीगल माना जाता है। ओके, मीन्स गैर कानूनी माना जाता है। अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा मिलती है और फाइन भी देना पड़ता है। सो इट शुड बी स्टॉप्ड, और इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बच्चों से, छोटे बच्चों से ऐसा लेबर वाला काम नहीं करवाना चाहिए। चाइल्डहुड इज
for study and play. बच्चों, आप लोगों को पता है, आप लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपको पालन पोषण कर रहे हैं, वो आपको पढ़ा भी रहे हैं, आपको अच्छे स्कूल में भेजते हैं और आप पे पैसा खर्च करते हैं, आपको खेलने का भी वो बहुत भरपूर मौका देते हैं। बट ऐसी जो किस्मत है वो सब बच्चों की नहीं होती है। जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं, लोग उनसे छोटा मोटा काम करवा के और उनको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं और उनके बदले वो काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो स्कूल भेजने के लिए पैसे होते हैं उनके पेरेंट्स के पास, और ना ही वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं जैसे आप लोग कर पाते हो। आप लोग खेलते हो और स्टडी करते हो, तो ये इससे आप लोग एक अच्छे इंसान बन पाते हो। तो ये सब हर बच्चे का अधिकार है, और हर बच्चे को जो चाइल्डहुड है वो होता है, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो बचपन जो होता है वो सिर्फ पढ़ने के लिए और खेलने के लिए होता है। बचपन में वो अलग बात है कि हम अपने घर में अपने पेरेंट्स की कुछ हेल्प करते हैं, दैट इज नॉट अ चाइल्ड लेबर। ओके, don't take it as a child labor, because when we help our parents in doing work, because we are also member of the family, and that is not called child labor. बट अगर कोई हमसे ऐसा काम करवाए या किसी भी बच्चे से ऐसा काम करवाए और उसको थोड़े बहुत पैसे दे, तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर। और उससे क्या होता है, वो बच्चे छोटी एज से ही सिर्फ पैसे के कमाने के लिए ही वो पढ़ना लिखना भी नहीं चाहते हैं और वो खेलना भी भूल जाते हैं। तो मतलब उनका जो बचपन होता है वो पूरा इसी में निकल जाता है। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज ग्रोइंग अप विद वैल्यूज। सो अंडर दिस they have given indoor games are good to play, but outdoor games are a healthy way to play. मीन्स इंडोर गेम्स जो होती हैं वो अच्छी होती हैं खेलने के लिए, हमें उनमें भी खेलने में बहुत मज़ा आता है। बट चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जितनी भी इंडोर गेम्स होती हैं, जैसे हम कैरम खेलते हैं या चेस खेलते हैं या टेबल टेनिस या लूडो, ये सब गेम्स जो खेलते हैं या प्लेइंग कार्ड्स आप खेलते हो, तो ये सब गेम्स जो होती हैं इनसे आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पाती। ओके, एंड आउटडोर गेम्स जो होती हैं दे मेक्स यू हेल्दी, एंड इनको खेलना जो है वो हमारे लिए एक एक्सरसाइज करने जैसा हो जाता है। जब हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो आउटडोर गेम्स में हमें रनिंग भी करनी पड़ती है और भी बहुत सारी ऐसी फिजिकल हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। ओके, सो प्रेफर टू प्ले इन पार्क्स एंड गार्डन्स अराउंड। तो आपको ये प्रेफर करना चाहिए कि आपको गार्डन में या जो भी आपके आसपास में पार्क हो उस एरिया में आपको खेलना चाहिए, और उसी को मतलब वहाँ खेलना ही आपको प्रेफर करना चाहिए। मेक श्योर दैट सम ट्रस्टेड एल्डर्स इज ऑलवेज देयर विद यू। और उसके साथ साथ चिल्ड्रन, क्योंकि जब हम पार्क में या आपके जो भी आसपास कोई आपके एरिया में गार्डन हो, जब हम वहाँ खेलने जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे जो और लोग भी खेलने आते हैं, उनमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि आपके साथ कोई भी एल्डर ज़रूर होना चाहिए जब आप वहाँ पे खेलने जाओ। तो एल्डर मीन्स कोई भी घर में बड़े जो होते हैं, या आपके ब्रदर सिस्टर हों या आपके
मम्मी पापा में से कोई हो या आपके दादी दादा हो, नानी नाना हो, कोई भी जो भी आपके घर में एल्डर्स हैं उनमें से कोई आपके साथ ज़रूर होना चाहिए. ओके, so that we should play safe, we can play safely. Okay, so children, one more information is written here in this box. And did you know that the Commonwealth Games were initially known as the British Empire Games during the period of 1930 to 1950. अब चिल्ड्रन, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं ये भी एक ऐसी गेम्स हैं जो हमारी कंट्री में करवाई जाती हैं. ओके, सो कॉमनवेल्थ गेम्स जो थी वो सबसे पहले उसका जो नाम था वो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया था. और वो कब इसका नाम इसको इस नाम से कब जाना जाता था? 1930 से लेके और 1950 तक. ओके, ये इसी नेम से इसको जाना जाता था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से. बट आफ्टर दैट व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम इट्स नेम वाज चेंज्ड, सो now it is Commonwealth Games. Okay, so this is all about your chapter number 2, work and play. And children, let's start doing exercise part. So in the exercise, first is write the correct answer in the space provided. सो इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनके हिसाब से आपको जो भी वर्ड करेक्ट लगे उसको आपको लिखना है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई कैच द पीपल हु ब्रेक द लॉज. तो इसमें क्या है कि कौन जो है वो ये बोल सकता है कि मैं ऐसे लोगों को पकड़ता हूँ जो लॉज को ब्रेक करते हैं, जो कानून तोड़ने वाले लोग होते हैं, मैं उनको पकड़ता हूँ. तो कानून तोड़ने वाले लोगों को कौन पकड़ता है? पुलिसमैन. ओके, सो पुलिसमैन इज द करेक्ट वर्ड. सो आई ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स. सो चिल्ड्रन, हु can grow crops? Farmers can grow crops. Okay, so here you have to write farmers. And next is I deliver letters and money orders to you. So who deliver letters and money orders to you? Postman. So correct word is postman. And next is fourth one is I work day and night to defend our borders. So children, हमारी कंट्री के जो बॉर्डर्स हैं उनको दिन रात उसकी रक्षा कौन करता है? वहाँ पे कौन वर्क करता है? डिफेंस पर्सनल्स. I have told you under this chapter we have studied about the defense personals. Okay, they defend our borders. जो हमारी कंट्री के जो बॉर्डर्स होते हैं उन पे ये लोग रात और दिन मेहनत करते हैं और वहाँ पे हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं. सो फिफ्थ इज आई वीव क्लोथ्स फॉर यू. सो कौन हमारे लिए कपड़े बनाता है? वीविंग मीन्स वीव करना, मतलब कपड़े को बुन के बनाना. सो इनको क्या बोलते हैं? वीवर्स. जो कपड़े बनाते हैं उनको बोलते हैं वीवर्स, क्लोथ्स बनाने वालों को. सो आफ्टर दिस द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स तो हम बाद में करेंगे, एक साथ मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी और उसकी एक्सरसाइज आज हम कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में करवा दूंगी. इन द फॉर्म ऑफ PDF also I'll send all these question answers. So fill in the boxes. Children, here
दे हैव गिवन इंडोर गेम्स। सो इसमें इंडोर गेम्स में 4 ब्लॉक्स यहाँ दिए हुए हैं। तो आपको इन 4 बॉक्सेस में कोई भी 4 इंडोर गेम्स के नेम लिखने हैं। ओके, ये जिस भी बच्चे की बुक है उसने अपने अकॉर्डिंगली लिखा है। आपको जो भी इंडोर गेम्स के नेम लिखने हो आप अपने अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हो। ओके, सो हियर ही हैज रिटन चेस, लूडो, कार्ड्स एंड कैरम, so you can write your own. And in the same way here also outdoor games, तो outdoor games में भी 4 इसमें boxes दिए हुए हैं। तो you should write your own any 4 outdoor games, name of any 4 outdoor games. So he has written cricket, hockey, badminton and tennis. So in the next exercise they have given name members of your family who work to earn money. अब चिल्ड्रन इसमें 2 ब्लैंक दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि उन अपने फैमिली मेंबर्स को के नेम यहाँ पे लिखिए, मतलब रिलेशन जो आपका है उनसे उसके बारे में आप उनका यहाँ पे लिखिए, दोनों का, जो आपके घर में पैसे कमाते हैं। ओके, पैसे कैसे कमाए जाते हैं? या तो कोई बिजनेस करके और या फिर कोई जॉब करके। ओके, सो अगर आपके फादर सिर्फ जो हैं वो अर्न करते हैं मनी, वो वर्क करते हैं, और आपकी मदर हाउसवाइफ है तो सिर्फ यहाँ फादर का नाम आएगा। एंड इफ योर मदर इज ऑल्सो वर्किंग एंड शी वर्क्स टू अर्न मनी, अगर वो भी पैसे कमाती हैं कोई जॉब करके या उनका भी कोई बिजनेस है, तो यहाँ आप अपनी मदर का भी लिख सकते हो। सो इट इज़ अप टू यू। ओके, ये सब बच्चों का एक जैसा नहीं हो सकता है। कुछ बच्चों के दोनों ही ब्लैंक में फिल होगा और कुछ के एक में ही आएगा। ओके, so next is name family members who do work at home out of love and care and not to earn. अब इन दोनों ब्लैंक्स में उन फैमिली मेंबर्स के नेम आएंगे जो वर्क तो करते हैं बट घर में वर्क करते हैं और वो आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और बट वो पैसे नहीं कमाते, उसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते हैं, बट वो अपने घर के लिए वो आपको प्यार करते हैं और आपकी केयर करने का काम करते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पे अगर आपकी मदर हैं तो आप मदर भी लिख सकते हो, क्योंकि जिनकी मदर हाउसवाइफ होंगी उनकी मदर का नाम भी यहाँ आ सकता है। और अगर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं तो भी आप यहाँ लिख सकते हो। हो सकता है कुछ लोगों के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी जॉब वाले होते हैं, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करोगे। what you feel up to that you have to fill here. Okay, so in the same way children, ये देखिए इसमें अब चैप्टर नंबर 1 और 2 इसके दोनों के बारे में यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है in this you have to rewrite the following sentences correctly. अब इसमें सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखना है और दोबारा से रीराइट करना है। मीन्स इसमें जैसे फर्स्ट वाले में क्या दिया है, द फैमिली डज नॉट सपोर्ट, तो फैमिली तो हमको सपोर्ट करती है इसलिए डज नॉट को आप कट कर दोगे। एंड गिव अस एनी केयर एंड लव, तो एनी केयर नहीं आएगा, फैमिली सपोर्ट्स एंड गिव अस केयर एंड लव। तो आप ऐसे करके इसको आप अपने अकॉर्डिंगली अरेंज करके लिख लोगे। सेकेंड इज द ट्विन्स लुक ऑलमोस्ट द सेम एंड डू नॉट हैव मैनी सिमिलर फीचर्स, तो इसमें आपका डू नॉट
सिर्फ इतना आप कट करोगे और बाकी का पूरा एज इट इज़ आप लिख लोगे, क्योंकि जो ट्विन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं एक दूसरे के, और उनमें बहुत सारे सिमिलर फीचर्स होते हैं। एक दूसरे के जो नए नक्श होते हैं वो बहुत सारे मिलते होते हैं, तो इसमें इसलिए डू नॉट को कट कर दोगे। देन नेक्स्ट इज we do not share our feelings with the person whom we do not admire the most। अब चिल्ड्रन ये आपके फर्स्ट चैप्टर में से ये सेंटेंस लिया है, इसमें मैंने आपको ये सेंटेंस शायद किसी आंसर में भी लिखवाया हुआ है कि वी शेयर आवर फीलिंग्स विद द पर्सन whom we admire the most। तो इसमें डू नॉट कट कर दोगे, और इसके साथ साथ इसमें जो यहाँ पे डू नॉट आया है इसको भी कट कर देंगे, क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो हम ऐसे पर्सन के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं घर में जिनको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ओके, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। एंड फोर्थ इज द डैश ग्रो मीन्स द वीवर्स here they have written grow crops। आपको पता है वीवर्स कभी भी जो हैं वो क्लोथ्स बनाते हैं, वो क्रॉप्स को ग्रो नहीं करवाते हैं। तो वीवर्स को कट करके आप क्या लिखोगे, फार्मर्स, ओके। सो फार्मर्स, वीवर्स को कट करके फार्मर वर्ड आ जाएगा। इन द फील्ड टू प्रोवाइड द फूड ग्रेन्स, और बाकी सेंटेंस एज इट इज पूरा ऐसे ही लिखोगे। देन फिफ्थ इज गेम्स आर डैश द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फन। तो गेम्स जो होती हैं वो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फन होती हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा करने का एक बहुत अच्छा वो तरीका होता है या सोर्स होता है। तो इसमें भी नॉट जो है उसको आप कट कर दोगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ओके। So children, next they have given match the following games to the type of game it is। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सेंटर में उन्होंने दो वर्ड दिए हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अब इस साइड आपको 4 नेम्स गेम के इस साइड लिखे हैं और 4 नेम गेम्स के इस साइड लिखे हैं। नाउ यू हैव टू मैच देम। जो भी गेम इंडोर है उसको आप इंडोर के साथ मैच करवाओगे, जैसे लूडो एंड हियर यू कैन सी चेस, टेबल टेनिस, स्नेक्स एंड लेडर, दीज ऑल आर इंडोर गेम्स, तो इनको आप इनके साथ मैच करा दोगे। और आउटडोर गेम्स हॉकी, टेनिस, फुटबॉल एंड क्रिकेट, दीज ऑल आर द आउटडोर गेम्स, तो इनको आउटडोर गेम के साथ मैच करवाओगे। तो दिस इज द मेन थिंग, ओके। देन उसके बाद इसमें दिया है राइट एनी 4 वैल्यूज़ और गेम स्किल्स यू लर्न इन योर फैमिली। कोई भी ऐसी 4 वैल्यूज़ या गेम्स या स्किल जो आप अपनी फैमिली से सीखते हो, ये उसके बारे में इन्होंने दिया है। ये हमने आपको लिखवाया नहीं है और ना ही आपको ये लिखना है, ये आपको आप अपने नॉलेज के लिए आप ये कर सकते हो, ओके। बट यू शुड नो कि कौन सी 4 वैल्यूज़ आपने अपनी फैमिली से सीखी, या कौन सी 4 गेम्स हैं जो आपने अपनी फैमिली से सीखी हैं, या कोई स्किल मतलब कोई भी ऐसा काम करना, स्पेशल जो काम होते हैं वो आप अपनी फैमिली से सीखते हो, तो कौन से हैं वो जो आपने उनसे सीखे। Then D is circle the skills that sports and games help you to learn। अब स्पोर्ट्स खेलते हुए या गेम्स खेलते हुए आप कौन सी स्किल सीखते हो वो उनको आप सर्कल करोगे। तो फाइटिंग तो हमें नहीं सीखना है, ना ही हम सीखते हैं, जबकि आप लोग जब खेलते हो तो आप लोग फाइट करते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग, ओके। सो फर्स्ट वी लर्न टीम स्पिरिट। टीम में हमें कैसे टीम की भावना जो होती है उसको हम सीखते हैं। देन जॉगिंग करना सीखते हैं, कंपटीशन सीखते हैं, एक दूसरे से टीम से कैसे compete करके और हमें जीतना है। एंड देन बीइंग एक्टिव,
और हमें एकदम एक्टिव कैसे बन के और उस गेम को प्ले करना है वो भी हम सीखते हैं। और इसके अलावा कोऑपरेशन, मिलजुल के काम करना सीखते हैं। देन हाउ वी मेंटेन डिसिप्लिन इन द गेम, दैट ऑल्सो वी लर्न। सो these all are the negative kind of words: fighting, laziness, weakness. So these we not learn from the sports and games. Okay, so children, this is about the एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और ये जो लास्ट पेज मैंने आपको अभी करवाया है ये तो आपका चैप्टर 1 and 2 दोनों का मिक्स है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो गुड एंड इट इज़ गुड फॉर प्रैक्टिस when you learn both the chapters. Okay, so after this we will do in next time about the question answers. Or children, next time I'll take online class because when we do question answers I'll explain you question answers and then I'll send you in the form of PDF also, but you note down from the PDF, but you should understand what are the questions and what are their answers. तो वो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में करवाऊंगी। ओके, सो बाय द टाइम learn all these exercises also what I have taught you today. So Jai Gurudev to all of you.